Hello everyone, I hope you all are doing well. Myself Majla. Let's continue our discussion on politics of plant development or planning and development chapter from class 12th political science. I already uploaded the first part. This is part 2. Let's start. Now see, if you want to get the PDF of every single video I upload, for that you have to search Manjula Ma'am official at the Telegram channel. Okay. Now, see, in previous part, we discussed about the emergence of this planned economy, Bombay Plan, first 5-year plan, second 5-year plan, and about the number of 5-year plans we had till now, and plan holidays, criticism against second 5-year plan. All those things we discussed in detail. Now we have to start from here in second part, that is public sector versus private. Okay, now let's start. Now see, after independence, India had two types of, two models of development before it. Okay, the first is that the capitalist model of USA, and the second one, socialist model of USSR. Fine. Now, what is the difference between both these? Capitalist which model of development is that in which the development was entirely left to the private sector. Okay, the private sector का यहाँ पर ज़्यादा है. Fine. Socialist model is that in which private property kind of concept was been abolished, and all the productions was controlled by the state. The state का ज़्यादा controlled होगा सारा. Fine, सारे productions में. Now, what the government adopted, Indian government, it adopted the mixture of both. Okay, तो हमने mixed economy adopt करा model. Fine. Now, इसमें दोनों features है, private भी और public भी. Now, see here, agriculture, trade, industry, all these areas were in the hands of private, and public के control में, that is the state के control में कौन कौन से, heavy industries and industry से related infrastructure को regulate करना, and regulating the trade, and of course जहाँ पर wherever required, the government actually done the intervention in the agriculture sector. So सारे fully जो private के हाथ में वो 100% नहीं है, वहाँ पर government wherever required in order to regulate it, in order to ensure that fair things are taking place, government actually done the intervention. Okay, so यहाँ पर दोनों है, public भी और private भी. Fine. Now, ये जो हमने मॉडल अडॉप्ट किया था, दिस मिक्स्ड मॉडल, इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय बोथ द विंग. बोथ द विंग मीन्स both left and right wing groups. Okay, now left and right wing group means what? I explained in that previous part itself. Left wing means those people who are actually support poor people. Okay, who are in favor of poor, weaker sections, and support that government policies should be there for the benefit of those sections. Fine. अच्छा, right wing कौन से होंगे? Those who believe that free market होना चाहिए, market economy होना चाहिए, वहाँ पर government का control, it should be unnecessary, वहाँ पर government का intervention नहीं होना चाहिए. They should be left free. It should be free market, and that will lead to a better development. Those kind of ideology come under the right wing. Fine. Now, इस mixed model को दोनों ही group ने criticize किया, both left and right wing. Now, let's see the criticisms. Now, the first criticism is that they argue, जो criticize करते, what they say is that जो economy का जो plan कर रहे थे, they actually refuse to provide the private sector with enough space and stimulus to grow. Okay, इसको इस तरीके से समझना that since you all know that we adopted the mixed model, that is it has both public and private. तो यहाँ पर ये ऐसे समझना कि हमने ज़्यादा फोकस किया पब्लिक सेक्टर के ऊपर. ओके, एंड जो प्लानर जो थे, दे मोर फोकस ऑन द पब्लिक सेक्टर, एंड दे प्रोवाइडेड अ वेरी लिटिल स्पेस, very little focus area for the private sector. Fine. So this does not provided the encouragement, motivation for them to grow. That is the first criticism, all those people who criticize. Fine. And ये जो है, ये पब्लिक में हमने ज़्यादा फोकस किया, प्राइवेट में बहुत कम फोकस किया. So it means that the planets not provided that enough space. They provided very little focus area. Okay, and that does not provided the encouragement. उन्हें motivation भी तो करना होगा, उनके ऊपर ज़्यादा focus करोगे, उनके लिए better policies बनाओगे, then only they will be encouraged, then only they will be motivated to set up their industries and everything. So that is the first criticism, that was not done. Fine. And second one is that those public sectors, all this government, what they done, they actually created this license Raj, or we call it permit Raj.
1947 से 1990s टाइम पीरियड तक जो लाइक इकोनॉमिक सिस्टम जो था, एट दैट टाइम वी हैड दिस लाइसेंस राज सिस्टम, और वी call it permit raj. That is, if any private person want to set up any factory, like even if that person want to produce a marker, ओके तो उसे लाइसेंस लेना होगा, उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करना होगा, डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के पास जाना होगा. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट इज़ नॉट एट ऑल दैट ईजी. आई एम नॉट सेइंग दैट इन टूडेज टाइम वी डोंट हैव, वी डू हैव, बट nowadays it has been simplified a lot. बहुत ज़्यादा जो restriction जो होता है that has been simplified. Now you can scan the documents and online technology के through आप scan upload कर सकते हो, form fill कर सकते हो. Now it's like it has been simplified, but at that time it was quite difficult. आपको बहुत ज़्यादा different agencies के government agencies के पास जाना होता है. You have to fulfill the documents, and definitely now you can see here इस process में जब ऐसा license का process हो, who can get the license in a very easy manner? The one who is powerful, the one who has a money, fine. So this provides the chance for corruption. और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा corruptions भी हुए थे. None of the system was very, it was not efficient enough. Fine. Since government का बहुत ज़्यादा control था, जितना control होना चाहिए प्रोडक्शन में उससे ज़्यादा control था, and that provided the inefficiency. It increased the corruption. And one more thing, that is, what the state done, government done that put restriction on import of goods that could be produced in the domestic market. जो भी ऐसे goods है जिनको हम इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके, ऐसे goods अगर कोई बाहर से import करता है, फाइन, उसके ऊपर import charges पुट कर दिया. लाइक अगर आप import charges गवर्नमेंट पुट करते तो डेफिनेटली जो वो प्रोडक्ट्स होंगे उनके कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगे. ओके, एंड इफ कॉस्ट इज इंक्रीज दैट विल बी अवेलेबल एट द कॉस्टली रेट. और यहाँ पर जो हमारे डोमेस्टिक ऐसे जो इंडस्ट्रीज है वही सेम प्रोडक्ट को जो वो बनाते हैं, दोज इंडस्ट्रीज विल नॉट बी इन ए पोजिशन that they should focus on improving the quality of their goods, okay, and they should try their level best to make that those things cost effective. फाइन. नाउ ऐसा क्यों नहीं होगा? बिकॉज अगर जो भी सामान बाहर से इंडिया में आते हैं उनके ऊपर इम्पोर्ट चार्जेस अगर पुट करते तो डेफिनेटली कॉस्ट ज़्यादा होगा. तो वो ज़्यादा वैसे ही वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे हमारे जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि लोग इसे परचेज ही नहीं करेंगे. एंड वहाँ पर ज़्यादा बाहर से कोई कंपनीज जो होंगी वो ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं होंगी उनके साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए. एंड इफ मोर कंपनीज आर नॉट देयर फॉर डूइंग द कॉम्पिटिशन, कोई भी प्राइवेट कंपनी जो इंडिया में, उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो अपने इनोवेशंस करे, वो अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी को इम्प्रूव करे, एंड दे शुड ट्राई दैट कि उनको कॉस्ट को इफेक्टिव बनाए. नो, बिकॉज दे नो दैट देयर थिंग्स विल बी सोल्ड ऑफ एंड देयर इज नो दैट मच कॉम्पिटिशन इज देयर. बट एट प्रेजेंट इफ यू लुक एट, if you want to buy the mobile phone, you will see many different brands are available, and it's a tough competition. And all the brand, what they do is that they try their level best to make that mobile phone cost effective, कि वो सस्ता हो और दूसरी चीज़ उसमें सारे better features available हो. okay, they focus on the quality. but at that time, since import ड्यूटीज डिफरेंट गुड्स के ऊपर लगते थे, जो भी सामान इंडिया में ऑलरेडी प्रोड्यूस होते थे उन सारे सेम प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो इट प्रोवाइडेड वेरी लेस कॉम्पिटिशन फॉर द इंडियन दोज प्राइवेट इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन दोज goods, and that provided less favorable conditions for them to focus on doing the innovations, focus on making the cost effective, right? So that is a big drawback, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था उसमें. ओके, सो दिस इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड. एंड एक और जो क्रिटिसिज्म होता है वो ये कि दैट पीपल क्रिटिसाइज दैट गवर्नमेंट, सिंस गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रोल था, वो पब्लिक सेक्टर में उसने बहुत फोकस किया था, बट गवर्नमेंट नॉट डन दैट मच फोकस ऑन द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, रिड्यूसिंग द पॉवर्टी. ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये क्रिटिसाइज होता है कि दैट गवर्नमेंट ने ज़्यादा अच्छे से बेटर क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं किया, ज़्यादा अचीव नहीं किया. Although they done it, it's not that 100% they not done it, but yes, they not done that much as it was expected. Okay, and poverty also वो भी reduce नहीं हुआ ज़्यादा. So these are few criticism against this model done by various both the wing, by left wing and right wing ideology people. I hope this criticism is clear to all of you. Now अब जो हमने अर्ली फेसेस ऑफ जो डेवलपमेंट का प्रोसेस जो होता है, दोज अर्ली फेसेस ऑफ दोज प्लान्ड डेवलपमेंट. ओके, अब
उसका क्या बेनिफिट था? द सबसे पहला बेनिफिट ये है दैट दोज अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट वट एवर वी अचीव्ड इट, ऑल दो जो भी उस टाइम पे डेवलपमेंट हुए थे, जो भी हमने 5 ईयर प्लान्स वगैरह अडॉप्ट किए थे, इट हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड बाय different section of the society. But yes, whatever we achieved at that time, that formed the base, that formed the foundation for the फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. 1991 उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, ओके, विच वी कॉल इट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ओके, सो उससे पहले जितना भी हमने अचीव किया था, वट एवर वी डन इट, दैट फॉर्म द बेस फॉर आफ्टरवर्ड्स, जो बाद में हमने रिफॉर्म के बाद जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हमारे इंडिया में डेवलप हुए थे बहुत ज़्यादा, तो दैट वॉज पॉसिबल बिकॉज वी डन समथिंग with that previous phases of our planned development policy system. Okay, now let's see what all major things we done at that particular time period. Now see, we achieved a major largest development projects हमने बहुत अच्छे से उस time पे किए थे. That is this one, you can see here that we built this mega dam, Bakar Nangal dam in Himachal Pradesh, Hirakund dam for irrigation. Basically Bakra Nangal dam in Himachal Pradesh and Hirakund dam in Odisha, ये बहुत अच्छे बड़े डैम्स हमने उस टाइम पे बनाए थे. एंड these dams help in for better irrigation facilities, पावर जनरेशन में काफ़ी हेल्पफुल हुआ. ओके, सो दिस द फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमने हेवी इंडस्ट्रीज को काफ़ी डेवलप किया था. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिफेंस प्रोडक्शन. फाइन, सो ये सारी चीज़ें उसी अर्ली फेज ऑफ डेवलपमेंट में हुआ था. एंड जस्ट इमेजिन अगर उस टाइम पे ये सारे डेवलपमेंट नहीं हुआ होता और 1990s में आप एलपीजी रिफॉर्म अगर गवर्नमेंट करती, तो डू यू थिंक दैट दैट वुड हैव बीन बेटर रिजल्ट द वे वी अचीव एट दैट टाइम? जो हमने अचीव किया था हो सकता है कि उतना हम ना अचीव करते. नाउ it was possible because something we done in the past and that formed the base. Okay, although loopholes are there, but yes, we done something that formed the foundation for the future economic development. And if we talk about infrastructure, तो ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ था, कम्युनिकेशन के भी. सो दीज थिंग्स फॉर्म द बेस फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आई होप दिस वन क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स लुक एट द लैंड रिफॉर्म डन आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके, देखो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म किया. फाइन. Now the first thing, land reform में जो गवर्नमेंट ने क्या किया था, that it abolished the colonial system of जमींदारी system. Okay, ब्रिटिश के टाइम पीरियड में जमींदारी सिस्टम था, इट्स अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम. इन दैट जमींदार्स एक्चुअली दे कलेक्टेड revenue or tax from the farmers and then they submitted to the Britishers. And they actually emerged as a powerful group. They had control over large land area. Okay, and what the government done, गवर्नमेंट सबसे पहले उन्होंने ये किया कि ये जो ज़मींदारी सिस्टम जो चलते हुआ था इसको पहले अबॉलिश कर दिया. फाइन. एंड इनके पास बहुत ज़्यादा लैंड का कंट्रोल था एंड दे वर लीस्ट इंटरेस्टेड टू फोकस ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन. कि ओके, पब्लिक को हमें बहुत ज़्यादा फूड गेन्स की प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है एंड वी शुड इंक्रीज द प्रोडक्शन. दे वर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड टू डू दैट. ओके, सो सबसे पहले इसको अबॉलिश करके क्या हुआ, दैट इनके पास जो बहुत ज़्यादा लैंड का कंट्रोल जो था दैट वाज नाउ रिलीज फ्रॉम देम एंड they distributed to those farmers who actually can focus on increasing the production. Okay, so ये एक चीज़ हुआ. अच्छा, इससे एक और बेनिफिट क्या हुआ abolition ऑफ ज़मींदारी सिस्टम, दैट जिस तरीके से ये जो ज़मींदार जो लैंड लॉर्ड इतने पावरफुल थे बिकॉज दे हैड कंट्रोल ओवर लार्ज लैंड एरियाज, उनका जो डोमिनेशन जो था दैट नाउ डिक्रीज्ड ड्रास्टिकली, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डिक्रीज हुआ. एंड उनका पॉलिटिक्स में जिस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करते थे दैट ऑल्सो नाउ स्टार्टेड decreasing. Okay, so this is about abolition of this colonial system of zamindari system. Fine. Now एक और चीज़ जो क्या हुआ, सेकेंड कैटेगरी आई एम टॉकिंग, दैट अबॉलिशन ऑफ दैट जमींदारी सिस्टम इज द आई मीन टेक इट फर्स्ट कैटेगरी, दिस इज सेकेंड कैटेगरी. बहुत सारे फार्मर्स के पास ऐसे थे जिनके पास छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड थे. ओके, जस्ट इमेजिन बहुत सारे डिफरेंट फार्मर्स एंड दे हैव दिस स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड. नाउ जस्ट थिंक ओवर, is this economically viable, economically beneficial to do the cultivation on these lands? Okay, यहाँ पर छोटे छोटे लैंड्स में अगर कल्टिवेशन करते हो तो यू विल नॉट प्रोड्यूस द इनफ थिंग्स. ओके, बिकॉज देखो लैंड के बाउंड्री साइज में भी काफ़ी आपका एरिया ऑक्यूपाई कर जाते हैं.
फाइन, एंड इतना ज़्यादा आप उसमें मेहनत भी करना, उसके साथ अब प्रोडक्शन भी इंक्रीज नहीं होगा, तो दोज थिंग्स आर नॉट आफ्टर कंफर्टेबल फॉर दी कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्रीज फूड रिक्वायरमेंट. ओके, सो गवर्नमेंट ने क्या किया इसमें, तो छोटे छोटे पीस ऑफ लैंड जो है उसको कंसोलिडेट किया, and then they made, they created in such a size that it should be viable economically, वो comfortable होना चाहिए in order to do the production. So this was done. अगर इसको सारे स्मॉल लैंड्स को एक साथ ज्वाइन करके इसमें कल्टिवेशन करेंगे तो नाउ द प्रोडक्शन विल इंक्रीज. You are getting me? So this is a second thing done, that bringing small piece of land together in one place so that the farm size could become viable for agriculture. Second thing, okay, देखो लैंड रिफॉर्म को डिफरेंट कैटेगरीज में किया था, एंड लैंड रिफॉर्म के जो डिफरेंट कैटेगरीज में हमने जो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने उसमें रिफॉर्म किया था, नॉट इन ऑल द कैटेगरीज इट वाज सक्सेसफुल. ओके, सो यहाँ पर जो था इट वाज गुड रिजल्ट, यहाँ पे ये भी हो गया था एक तरीके से, बट ये जो मैं 2 कैटेगरीज और जो मेंशन करूँगी यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं था. Okay, so land reform sometimes it is considered as a failure. In some areas, in some categories, we do achieve whatever we aim for, but in some areas, the result was not up to the mark. Maybe some reasons that we will discuss in detail. Now, you can see here third category. Third category क्या था, that government set some upper limit, ceiling limit. कि एक जो भी एग्रीकल्चर जो पर्सन जो होता है उसके पास एग्रीकल्चर लैंड कितना होना चाहिए, उसमें एक पर्सन का एक अपर लिमिट सेट कर दिया. ओके, सो दिस इज द थर्ड वन. नाउ यहाँ पर जो सेट जो किया था अपर लिमिट, इसका प्रॉब्लम क्या कि इसको प्रॉपर तरीके से एक तरीके से जो भी लोग जो थे, जो फार्मर्स होते हैं, दे एक्चुअली ट्राई टू एस्केप बाय इवेडिंग द लॉ. ओके, लॉ के थ्रू वो अपने आप को बचा लेते थे, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन वो ढूंढ ही लेते थे. फाइन, सो दे इवेडेड द लॉ, दैट इज द बिकॉज ऑफ दैट थिंग ये जो कैटेगरी है कहीं ना कहीं ये ज़्यादा प्रॉपर तरीके से सक्सेस नहीं हुआ. ओके, इट वॉज लेस सक्सेसफुल, नॉट दैट 100% हुआ ही नहीं, बट येस इट वॉज लेस सक्सेसफुल. एंड द फोर्थ कैटेगरी इज दैट the tenants who worked on someone else's land were given greater legal security against eviction. Basically बहुत सारे जो ऐसे फार्मर्स भी होते हैं जो दूसरों के किसी और के पास अगर लैंड है तो उनके लैंड उसमें रेंट में वो अपना वहाँ पर कल्टिवेशन करते हैं. सो दोज टेनेंट्स दे वर एक्चुअली गिवन अंडर दिस लैंड रिफॉर्म कि उन्हें ग्रेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया कि दैट दे विल नॉट बी दैट एट एनी टाइम जो भी अब उसको रिमूव कर देंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. They were given security for whatever the time period they made the agreement to do agriculture in that particular field. But problem here is that it has not been implemented properly. ये जो provision होता है इसको properly implement ही नहीं किया. That is the negative part. Okay, so land owners होते हैं, they were actually they were powerful and they tried to influence the politics. और जो poor landless people वगैरह जो होते हैं they were not that much aware about all the rules and regulations of the government. That's the point. And land owners जो थे वो काफ़ी powerful थे, वो politically influence करते थे. और इसके वजह से बहुत सारे ऐसे लैंड रिफॉर्म के प्रपोजल भी थे which just remained on the paper and they were never made into law. एंड जो ऐसे कुछ कैटेगरीज में लॉस बना भी लिया था they just were laid down in the paper कि बस वो पेपर में बहुत अच्छे से लिखा हुआ that this law has been made, this land reform has been made, but in practical level, at the ground level, the implementation was very poor. So that is the point to be noted over here. Okay, and this thing shows one very important thing, that is economic policy is part of the actual political situation in the society. This sense जहाँ पर political situation जैसा होता है तो वहाँ politicians जो political parties and they actually shape the economic policies. Okay, depending upon their vote banks and everything, they shape that. So economic policies जो होते हैं कहीं ना कहीं political situation के साथ determine होते हैं. Okay, so if you get any question like this, economic policy is part of actual political situation in the society, you can explain this land reform, that how this the land reform situation is actually influenced by the politics, influenced by the powerful landlords. Okay, and see, one more thing is that many leaders they had very good ambition that it should be land reform को अच्छे से improve करना चाहिए, इसको implement करना चाहिए, but yes, it all because of the dominant social groups. They actually control all these things, they influence in such a way that कहीं ना कहीं इसके implementation में problems हो जाते हैं. Okay, so this is about the land reform. I hope this one clear to all of you. फाइन. अच्छा, इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक और चीज़ क्या थी, दैट कि इस टाइम पे जो 1960s हम टॉकिंग,
ओके, एट दैट टाइम वी फेस्ड अ सीवियर ड्रॉट काइंड ऑफ सिचुएशन, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था वहाँ उस टाइम पे, मानसून का, बारिश का प्रॉपर जो पैटर्न जो था दैट वाज डिस्टर्ब्ड अ लॉट. एंड इसी 1960s में इंडिया फेस्ड टू वॉर्स. इफ यू रिमेंबर वी डिस्कस इन पार्ट ए बुक, 1962 इंडिया फॉट वॉर विद चाइना एंड 1965 विद पाकिस्तान. ओके, दोनों वॉर्स में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अपने जो फाइनेंस, जो पैसे जो थे काफ़ी उसमें यूज़ हो गए थे. एंड गवर्नमेंट के जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व जो थे उसमें भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था, बिकॉज एट दैट टाइम इंडिया का जो काइंड ऑफ एक टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड भी था, हेवी इंडस्ट्रीज हम फोकस कर रहे थे सेकेंड 5 ईयर प्लान में. एंड देन वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमने बाहर से भी उसे ग्लोबल मार्केट से उसे परचेज किया था. तो वी जस्ट स्पेंड अ लॉट ऑफ फॉरेन करेंसीज ऑन दैट. एंड फॉरेन हमारा जो करेंसी रिजर्व जो था दैट डिक्रीज अ लॉट. एंड ड्रॉट के वजह से बहुत ज़्यादा हमारे जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन जो था दैट वेंट ड्रास्टिकली डाउन. एंड वॉर के वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन भी बहुत पुअर था. एंड इसके वजह से बहुत ज़्यादा फूड की क्राइसिस थी. एंड सीवियरली इट वॉज फेल्ट इन बिहार स्टेट. ओके, बिहार में काफ़ी प्रॉब्लम था, फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी. इवन द पीपल दे वर नॉट एबल टू फुलफिल दी एवरी डेज कैलोरी रिक्वायरमेंट. जो एवरी डे जितना एक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है that was actually they were not able to fulfill. For example, 2450 per day calorie requirement होता है, they were not able to fulfill that much. Fine, बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे malnourished हो गए थे. And death rate also Bihar increased at that time. Death rate in Bihar in 1967 was 34% higher than the previous rate. ओके, एंड यहाँ पर जो फूड क्राइसिस जो था उसे सॉल्व भी हम थोड़ा इसलिए भी नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ दिस जोनिंग पॉलिसीज. जोनिंग पॉलिसीज क्या है दैट actually these policies kind of things that existed at that time. It basically what it says that it prohibits the trade of food across states जो है जो फूड को काइंड ऑफ ट्रेड करने जो सिस्टम्स है दैट वाज prohibited through this zoning policies. This is also in a major policy loophole you can say at that time we had. And finally what government done, government actually imported a lot of wheat. Okay, बाहर से हमने import किया था especially from USA. And of course USA will not give you it free of cost. Okay, so USA also set some pushed India to change its economic policies. इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज करने के लिए यूएसए ने प्रेशराइज किया था कि ऑफ कोर्स इट शुड बी इन फेवर ऑफ यूएसए, अलाइन टुवर्ड्स यूएसए. ओके, बट इन सारे सिचुएशन से उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे इंदिरा गांधी जी, उन्होंने ट्राई शी रियलाइज दैट इट्स नाउ टाइम फॉर इंडिया दैट वी शुड बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना होगा. फाइन, with that thought in mind, this green revolution concept started. Okay, so यहाँ पर इससे पहले सिस्टम क्या था कि गवर्नमेंट उन फार्मर्स के ऊपर फोकस कर रहे थे जो फार्मर्स बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, दे वर लैगिंग बिहाइंड, एंड उनके डेवलपमेंट पे फोकस कर रही थी गवर्नमेंट. नाउ व्हाट दे डन इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस फूड क्राइसिस और सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स में होने के लिए गवर्नमेंट ने एक न्यू स्टेप अडॉप्ट किया. And what is that now new step? Government now focused more on the farmers who are who are in a location who are well irrigated areas में. Okay, so उन farmers के ऊपर focus किया, उन्हें उनके ताकि प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सकें with a short period of time. Now what the government done? Government offered HYV seeds, fertilizer, pesticides and better irrigation facilities provide किया at subsidized rate. Okay, and इससे हुआ क्या, एंड ये भी प्रॉमिस किया कि वट एवर द फूड ग्रेन्स विल बी प्रोड्यूस इन दोज एरियाज द गवर्नमेंट विल परचेज एट द प्राइस दैट हैज बीन सेट बाय द गवर्नमेंट. फाइन, सो इसी को हम कहते हैं बिगिनिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. नाउ लेट्स सी द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. किसके इम्पैक्ट क्या आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट वन, पॉजिटिव. ओके, नाउ सी जो रिच पीजेंट जो थे, लार्ज लैंडलॉर्ड्स, they got benefit from this. उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, उनका इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी इंप्रूव हुआ, एंड एग्रीकल्चर जो ग्रोथ जो था दैट मॉडरेट ग्रोथ स्टार्टेड. मेनली बीट का हुआ था, एंड लेटर ऑन प्राइम मिनिस्टर शिडान इन राइस ऑल्सो. ओके, सो राइस में भी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था. एंड देन दिस इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द कंट्री. फाइन, तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. नाउ बिफोर विल डिस्कस दिस नेगेटिव आफ्टर डूइंग दिस वन. Okay, fine. Let me complete this one.
Now see, negative क्या है, that it increase the polarization between classes and regions. Basically अब division हो गया society में. Okay, these are those states which benefited from green revolution, where prosperous farmers are there. They are in a very good condition. They are in a very good irrigation facilities they have. उनके productions बहुत अच्छे. और एक तरफ दूसरे farmers हैं who are backward, whose agricultural production is not that up to the mark. Okay, तो एक तरीके से एक polarization हो गया, एक division हो गया. फाइन, सोसाइटी में रीजन वाइज क्लासेस वाइज एक डिविजन क्रिएट हो गया. ओके, सो दैट इज अ नेगेटिव पार्ट. एंड दूसरा नेगेटिव क्या है, दैट कुछ रीजन्स जहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया था ना, दोज रीजन्स विल बिकम प्रॉस्परस. फॉर एग्जाम्पल पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. ओके, और बाकी रीजन जो थे वो भी अभी भी बैकवर्ड है. सो दैट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड हियर. नाउ अब कुछ और पॉजिटिव पॉइंट्स को फोकस करते हैं. अब दूसरा पॉजिटिव ये है दैट सिंस यहाँ पर जो पुअर पीजेंट जो है, ओके, एंड दोज स्मॉल लैंडलॉर्ड्स, now it produced a favorable condition for left wing organizations to organize poor peasants. Okay, तो यहाँ पर जो पुअर peasants है उनके आवाज़ को प्रेजेंट करने के लिए अब एक न्यू ग्रुप इमर्ज हो रहा है. That is, we call it left wing organization, as we have seen in previous part, that left wing, right wing, left wing who favors the poor, weaker sections, and who believes that government should focus on doing the make policies for the better development of these sections. Okay, so यहाँ पर एक left wing, एक new group emerge हो रहा है who are actually raising their voice for their upliftment. ओके, सो दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव कि वो अब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो रहे हैं. सो दिस इज समथिंग वेरी गुड. नाउ दूसरा पॉजिटिव क्या है, दैट बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन अब कुछ ऐसे फार्मर्स भी थे जो दोज वर लाइक दे वर नॉट दैट मच रिच एंड दे वर नॉट पुअर, बट येस बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ऑल अब बहुत सारे जो थोड़ा पुअर कैटेगरी में थे, नाउ दे एमर्ज्ड and they occupied this middle category. Okay, and those middle sections, now those farmers who had medium size of holding, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, but yes they emerged as a a very important section in the society, और वो politically influence करना उन्होंने start किया. Fine, so उनका participation होना लग गया था यहाँ पर. तो ये हो गया सारे पॉजिटिव चीज़ें. तो पॉजिटिव कितने हो गए, 1 2 and these two 3 points. Okay, so positive 5 points and these 2 points negative you can see here. I hope this green revolution clear to all of you children. All right, now let's move on to the last part. Okay, see here. अब हम डिस्कस करते हैं कि लेटर पार्ट में क्या हुआ था. अच्छा, ओके, बिफोर डिस्कसिंग द लेटर पार्ट, इसी पर्टिकुलर टाइम पर में एक और चीज़ हुआ था. दैट इज वी हैव सीन अबाउट दिस ग्रीन रेवोल्यूशन. एक और क्या था, दैट वाज दिस वाइट revolution. I hope you all are familiar with this term, white revolution. That is Operation Flood. Okay, Operation Flood हुआ था, where the white revolution was basically increasing the production of milk. Okay, गुजरात में आनंद डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, and the father of white revolution, or we can say milkman of India, is considered as Varghese Kurian. Right, so this is something very important thing. PPT had not made it, but I just try to mention here. And through this white revolution, काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स होते, फॉर एग्जांपल लाइक पॉवर्टी को रिमूव करना, एंड रूरल इनकम को इंक्रीज करना, ओके, एंड एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, डेवलपमेंट और ज़्यादा बेटर करना. तो दीज थिंग्स वर अचीव थ्रू दिस वाइट रेवोल्यूशन. फाइन, नाउ लेटर डेवलपमेंट्स में क्या हुआ था. सी, later development basically, see, as we have seen, the story of development in India took a significant turn from the end of 1960s में काफ़ी changes हुए थे. Now end of 1960s कैसे, we have seen here green revolution, white revolution, तो बहुत कुछ changes हुआ था. in terms of politically also बहुत सारे changes हुए थे. Now सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के उस टाइम पे कौन कौन से ऑर्डर थे. Like in the order of prime ministers, first we had Jawaharlal Nehru. After the death of Jawaharlal Nehru in 1964, Lal Bahadur Shastri became the Prime Minister of India, and after his death in this in that Tashkent Uzbekistan region, उसके बाद जो Prime Minister बने थे इंडिया में, that was Indira Gandhi, and she emerged as a powerful leader.
Okay, what she done, she started strengthening the role of state in controlling and directing the economy की economy में बहुत ज़्यादा state का control ने increase किया जब वो power में आई थी 1967 onwards. उन्होंने बहुत ज़्यादा restrictions लगाए थे private industries के ऊपर, like 14 private banks were nationalized. Okay, for 14 ऐसे private banks ने जिनको nationalize कर दिया. And what reason she given, she gave the reason that रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज जो इंडिया के रूरल पार्ट्स हैं वहाँ पर हमें बैंकिंग सेक्टर को एक्सपैंड करना होगा, एंड दैट कैन बी डन व्हेन गवर्नमेंट कंट्रोल द बैंक्स. ओके, एंड बहुत सारे प्रो पुअर मेनी स्कीम्स को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था उस टाइम पे. सो दीज थिंग्स यू कैन सी हियर, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाना प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर. 14 प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट बैंक नेशनलाइज कर दिया उसको, एंड पुअर प्रोग्राम्स को जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था. दीज थिंग्स आर, यू कैन सी हियर, दीज आर बेसिकली अ टिल्ट टूवर्ड्स द सोशलिस्ट पॉलिसी. जो सोशलिस्ट पॉलिसीज, सोशलिस्ट मॉडल जो होते हैं उसी के फीचर्स है. वहाँ पर ही ऐसा होता है कि पुअर पीपल के प्रोग्राम्स को लॉन्च करना, स्कीम्स लॉन्च करना, गवर्नमेंट कंट्रोल होना. सो यू कैन सी हियर शी इज़ एक्चुअली टिल्टिंग टूवर्ड्स द सोशलिस्ट मॉडल. फाइन. और 1950s एंड 60s में द इंडियन इकोनॉमी जो था दैट वाज ग्रोइंग अराउंड दिस रेट 3 to 3.5% ऑफ GDP. एंड यहाँ पर सिंस गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो था उसके वजह से इनएफिशिएंसी, करप्शन बहुत ज़्यादा हुए थे. एंड 1980s ऑनवर्ड्स, एंड देखो इनएफिशिएंसी, करप्शन बहुत ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो ट्रस्ट है पब्लिक सेक्टर के ऊपर दैट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, एंड दैट हैपेंड. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली with the 1980s onwards, a lot of changes took place. और जो फिर slowly and gradually the government का control जो था that started decreasing, and that's we have seen in 1991 LPG reform हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा जो बाहर से private companies को इंडिया में investment करने के लिए like all this the liberalization process was done, rules and regulations में काफ़ी कुछ changes किए थे. So this is all about in this particular part. I hope this one clear to all of you. In the third part, that will be the last part, in that I will discuss about the Niti Aayog and National Development Council, जो new topic government CBSE ने add किया था for the session 2020-21, that we will discuss in that one. Okay, I hope this one clear to all of you. Thank you for watching this video.